हम पढ़ेंगे एजेकियल 8 चैप्टर, 9 चैप्टर, 10 चैप्टर किंग्स जेम्स वर्शन में से। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा, सच में खुदा जैसा तू है वैसा कोई नहीं है। खुदा परमेश्वर के आत्मा जैसा तू है वैसा कोई नहीं है। खुदा परमेश्वर के आत्मा, इस शरीर को तूने पवित्र और शुद्ध बनने का रास्ता दिया है। ये शरीर शैतान कहीं से भी कुछ भी करे, ये कभी अशुद्ध नहीं हो सकता है। इसके अंदर निर्दोषता का छाप पवित्र आत्मा यीशु के बलिदान के द्वारा तूने लाया है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। एक तमाशा है शैतान, और कुछ भी नहीं है उसके पास। सिर्फ एक तमाशा है, जो खिलौना है, जो चलता चलता जाएगा और फिर नाश किया जाएगा। हालेलुया। उसके अंदर कुछ बाकी नहीं है। हम आज भी शुद्ध रहेंगे, आने वाले समय में भी शुद्ध रहेंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें निर्दोष, निष्कलंक और शुद्ध ठहरा दिया है। हालेलुया। हमारे शरीर की अवस्थाएं हर हिस्से में शुद्ध रहे और पवित्र रहेगी। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं कि हमारा एक भी अंग शैतान के कब्जे का नहीं है। एक भी अंग शैतान के कब्जे का नहीं है। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा। थैंक यू जीसस। हम खुल्ला जहाँ भी जैसे भी है, यीशु तेरे धार्मिकता के वस्त्रों को हम पहने हुए हैं। शैतान तू झूठा है, उस वस्त्र के अंदर तू हमको छू नहीं सकता है। शट अप एंड गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आई कमांड यू। पवित्र आत्मा, जो वचन हमको पढ़ना है उसके अंदर हमारी सहायता करो और हमारे जीवन को उजियाले से भर दीजिए। परमेश्वर के ज्ञान, बुद्धि, समझ से भर दीजिए। नासरी यीशु के नाम में आमीन, आमीन, आमीन। एजेकियल 8 चैप्टर किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे। फर्स्ट वर्स से पढ़ेंगे। एंड इट केम टू पास इन द 6th year, in the 6th month, in the 5th day of the month, as I sat in mine house, and the elders of Judah sat before me, that the hand of the Lord God fell there upon me. Then I beheld, and lo, a likeness as the appearance of fire from the appearance of his loins, even downward fire, and from his loins even upward, as the appearance of brightness, as the color of amber. And he put forth the form of an hand, and took me by a lock of mine head, and the Spirit lifted me up between the earth and the heaven, and brought me in the visions of God to Jerusalem, to the door of the inner gate that looketh toward the north, where was the seat of the image of jealousy, which provoketh to jealousy. And behold, the glory of the God of Israel was there, according to the vision that I saw in the plain. Then said he unto me, Son of man, lift up thine eyes now the way toward the north. So I lifted up mine eyes the way toward the north, and behold, northward at the gate of the altar, this image of jealousy in the entry. He said furthermore unto me, Son of man, seest thou what they do, even the great abominations that the house of Israel committeth here, that I should go far off from my sanctuary? But
turn thee yet again, and thou shalt see greater abominations. And he brought me to the door of the court, and when I looked, behold, a hole in the wall. Then said he unto me, Son of man, dig now in the wall. And when I had digged in the wall, behold, a door. And he said unto me, Go in and behold the wicked abominations that they do here. So I went in and saw, and behold, every form of creeping things and abominable beasts, and all the idols of the house of Israel portrayed upon the wall round about. And there stood before them 70 men of the ancients of the house of Israel, and in the midst of them stood Jazaniah the son of Shaphan, with every man his censer in his hand, and a thick cloud of incense went up. Then said he unto me, Son of man, hast thou seen what the ancients of the house of Israel do in the dark, every man in the chambers of his imagery? For they say, The Lord seeth us not, the Lord hath forsaken the earth. He said also unto me, Turn thee yet again, and thou shalt see greater abominations that they do. Then he brought me to the door of the gate of the Lord's house, which was toward the north, and behold, there sat a woman weeping for Tammuz. Then said he unto me, Hast thou seen this, O son of man? Turn thee yet again, and thou shalt see greater abominations than this. And he brought me into the inner court of the Lord's house, and behold, at the door of the temple of the Lord, between the porch and the altar, were about 25 men with their backs toward the temple of the Lord, and their faces toward the east, and they worshipped the sun toward the east. Then he said unto me, Hast thou seen this, O son of man? Is it a light thing to the house of Judah that they commit the abominations which they commit here? For they have filled the land with violence, and have returned to provoke me to anger, and lo, they put the branch to their nose. Therefore will I also deal in fury. Mine eye shall not spare, neither will I have pity. And though they cry in mine ears with a loud voice, yet will I not hear them. He cried also in mine ears with a 9th chapter, first verse से पढ़ेंगे. He cried also in mine ears with a loud voice, saying, Cause them that have a charge over the city to draw near, even every man with his destroying weapon in his hand. And behold, 6 men came from the way of the higher gate, which lieth toward the north, and every man a slaughter weapon in his hand, and one man among them was clothed with linen, with a writer's inkhorn by his side, and they went in and stood beside the brazen altar. And the glory of the God of Israel was gone up from the cherub, whereupon he was to the threshold of the house, and he called to the man clothed with linen, which had the writer's inkhorn by his side. And the Lord said unto him, Go through
the midst of the city, through the midst of Jerusalem, and set a mark upon the foreheads of the men that sigh and that cry for all the abominations that be done in the midst thereof. And to the others he said in mine hearing, Go ye after him through the city and smite. Let not your eyes spare, neither have a pity, ye pity. Slay utterly old and young, both maids and little children and women. But come not near any man upon whom is the mark, and begin at my sanctuary. Then they began at the ancient men which were before the house. And he said unto them, Defile the house, and fill the courts with the slain. Go ye forth. And they went forth and slew in the city. And it came to pass, while they were slaying them, and I was left, that I fell upon my face, and cried and said, Ah, Lord God, wilt thou destroy all the residue of Israel in thy pouring out of thy fury upon Jerusalem? Then said he unto me, The iniquity of the house of Israel and Judah is exceeding great, and the land is full of blood, and the city full of perverseness. For they say, The Lord hath forsaken the earth, and the Lord seeth not. And as for me also, mine eye shall not spare, neither will I have pity, but I will recompense their way upon their head. And behold, the man clothed with linen, which had the inkhorn by his side, reported the matter, saying, I have done as thou hast commanded me. 10th chapter, first verse say, Then I looked, and behold, in the firmament that was above the head of the cherubims there appeared over them as it were a sapphire stone, as the appearance of the likeness of a throne. And he spake unto the man clothed with linen, and said, Go in between the wheels, even under the cherub, and fill thine hand with coals of fire from between the cherubims, and scatter them over the city. And he went in my sight. Now the cherubims stood on the right side of the house when the man went in, and the cloud filled the inner court. Then the glory of the Lord went up from the cherub and stood over the threshold of the house, and the house was filled with the cloud, and the court was full of the brightness of the Lord's glory. And the sound of the cherubim's wings was heard even to the outer court, as the voice of the Almighty God when he speaketh. And it came to pass that when he had commanded the man clothed with linen, saying, Take fire from between the wheels, from between the cherubims, then he went in and stood beside the wheels. And one cherub stretched forth his hand from between the cherubims unto the fire that was between the cherubims, and took thereof, and put it into the hands of him that was clothed with linen, who took it and went out. And there appeared in the cherubims the form of a man's hand under their wings. And when I looked, behold, the four wheels by the cherubims, one wheel by one cherub, and another wheel by another cherub, and the appearance of the wheels was of the color of a beryl stone. And as for their appearances, they four had one likeness, as if a wheel had been in the midst of a wheel. When they went upon their four sides. They turned not as they went, but to the place whither the head looked, they followed it. They turned not as they went.
and their whole body, and their backs, and their hands, and their wings, and the wheels were full of eyes round about, even the wheels that they four had. As for the wheels, it was cried unto them in my hearing, O wheel. And every one had four faces. The first face was the face of a cherub, and the second face was the face of a man, and the third the face of a lion, and the fourth the face of an eagle. And the cherubims were lifted up. This is the living creature that I saw by the river of Chebar. And when the cherubims went, the wheels went by them, and when the cherubims lifted up their wings to mount up from the earth, the same wheels also turned not from beside them. When they stood, this stood, and when they were lifted up, this lifted up themselves also, for the spirit of the living creature was in them. Then the glory of the Lord departed from off the threshold of the house and stood over the cherubims. And the cherubims lifted up their wings and mounted up from the earth in my sight. When they went out, the wheels also were beside them, and every one stood at the door of the east gate of the Lord's house, and the glory of the God of Israel was over them above. This is the living creature that I saw under the God of Israel by the river of Chebar, and I knew that they were the cherubims. Every one had four faces apiece, and every one four wings, and the likeness of the hands of a man was under their wings, and the likeness of their faces as the same faces which I saw by the river of Chebar. Their appearances and themselves, they went every one straight forward. हम पढ़ेंगे हिंदी में BSI बाइबल में से। यह हिजकेल की भविष्यवाणी 8 अध्याय 9 अध्याय 10 अध्याय। परमेश्वर के विषय यह हिजकेल का द्वितीय दर्शन। यरूशलेम में मूर्ति पूजा। 8 अध्याय पहले वचन से। फिर छठवें वर्ष के छठवें महीने के 5वें दिन को, जब मैं अपने घर में बैठा था और यहूदियों के पुरनिये मेरे सामने बैठे थे, तब प्रभु यहोवा की शक्ति वही मुझ पर प्रकट हुई। तब मैंने देखा कि आग का सा एक रूप दिखाई देता है। उसकी कमर से नीचे की ओर आग है, और उसकी कमर से ऊपर की ओर झलकाए हुए पीतल की झलक सी कुछ है। उसने हाथ सा कुछ बढ़ा कर मेरे सिर के बाल पकड़े। तब आत्मा ने मुझे पृथ्वी और आकाश के बीच में उठाकर परमेश्वर के दिखाए हुए दर्शनों में यरूशलेम के मंदिर के भीतर आंगन के उस फाटक के पास पहुंचा दिया, जिसका मुंह उत्तर की ओर है, और जिसमें उस जलन उपजाने वाली प्रतिमा का स्थान था, जिसके कारण द्वेष उपजता है। फिर वहाँ इस्राएल के परमेश्वर का तेज वैसा ही था जैसा मैंने मैदान में देखा था। उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, अपनी आंखें उत्तर की ओर उठाकर देख। अतः मैंने अपनी आंखें उत्तर की ओर उठाकर देखा कि वेदी के फाटक के ऊपर की ओर उसके प्रवेश स्थान ही में
वह डाह उपजाने वाली प्रतिमा है। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, क्या तू देखता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं? इसराइल का घराना क्या ही बड़े घृणित काम यहाँ करता है, ताकि मैं अपने पवित्र स्थान से दूर हो जाऊं, परंतु तो इनसे भी अधिक घृणित काम देखेगा। तब वह मुझे आंगन के द्वार पर ले गया और मैंने देखा कि दीवार में एक छेद है। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, दीवार को फोड़। इसलिए मैंने दीवार को फोड़कर क्या देखा कि एक द्वार है। उसने मुझसे कहा, भीतर जाकर देख कि ये लोग यहाँ कैसे कैसे और अति घृणित काम कर रहे हैं। अतः मैंने भीतर जाकर देखा कि चारों ओर की दीवार पर जाति जाति के रेंगने वाले जंतुओं और घृणित पशुओं और इसराइल के घराने की सब मूर्तों के चित्र खींचे हुए हैं। इसराइल के घराने के पुरनियों में से 70 पुरुष, जिनके बीच में शापान का पुत्र याजन्या भी है, वे उन चित्रों के सामने खड़े हैं और हर एक पुरुष अपने हाथ में धूपदान लिए हुए हैं और धूप के धुएं के बादल की सुगंध उठ रही है। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, क्या तूने देखा है कि इसराइल के घराने के पुरनिये अपनी अपनी नक्काशी वाली कोठरियों के भीतर अर्थात अंधियारे में क्या कर रहे हैं? वे कहते हैं कि यहोवा हमको नहीं देखता। यहोवा ने देश को त्याग दिया है। फिर उसने मुझसे कहा, तू इनसे और मेरे और भी अति घृणित काम देखेगा जो वे करते हैं। तब वह मुझे यहोवा के भवन के उस फाटक के पास ले गया जो उत्तर की ओर था, और वहाँ स्त्रियां बैठी हुई तम्मूज के लिए रो रही थी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, क्या तूने यह देखा है? फिर इनसे भी बड़े घृणित काम तू देखेगा। तब वह मुझे यहोवा के भवन के भीतरी आंगन में ले गया, और वहाँ यहोवा के भवन के द्वार के पास ओसारे और वेदी के बीच कोई 25 पुरुष अपनी पीठ यहोवा के भवन की ओर और अपने मुख पूर्व की ओर किए हुए थे, और वे पूर्व दिशा की ओर सूर्य को दंडवत कर रहे थे। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, क्या तूने यह देखा? क्या यहूदा के घराने के लिए घृणित कामों का करना जो वे यहाँ करते हैं छोटी बात है? उन्होंने अपने देश को उपद्रव से भर दिया और फिर यहाँ आकर मुझे रिस दिलाते हैं, वरन वे डाले को अपनी नाक के आगे लिए रहते हैं। इसलिए मैं भी जलजलाहट के साथ काम करूँगा, न मैं दया करूँगा और न मैं कोमलता करूँगा, और चाहे वे मेरे कानों में ऊंचे शब्द से पुकारे तो भी मैं उनकी बात न सुनूँगा। 9 अध्याय पहले वचन से। यरूशलेम को दंड। पहले वचन से। फिर उसने मेरे कानों में ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, नगर के अधिकारियों को अपने अपने हाथ में नाश करने का हथियार लिए हुए निकट लाओ। इस पर 6 पुरुष उत्तर की ओर ऊपरी फाटक के मार्ग से अपने अपने हाथ में घात करने का हथियार लिए हुए आए, और उनके बीच सन का वस्त्र पहने, कमर में लिखने की दवात बांधे हुए एक और पुरुष था, और वे सब भवन के भीतर जाकर पीतल की वेदी के पास खड़े हुए। तब इस्राएल के परमेश्वर का तेज करबोम पर से, जिनके ऊपर वह
रहा करता था भवन की डेवढ़ी पर उठ आया था और उसने उस सन के वस्त्र पहने हुए पुरुष को जो कमर में दवात बांधे हुए था पुकारा। और यहोवा ने उससे कहा, इस यरूशलेम नगर के भीतर इधर उधर जाकर जितने मनुष्य उन सब घृणित कामों के कारण जो उसमें किए जाते हैं सांसें भरते और दुख के मारे चिल्लाते हैं, उनके माथों पर चिन्ह लगा दे। तब उसने मेरे सुनते हुए दूसरों से कहा, नगर में उनके पीछे पीछे चलकर मारते जाओ, किसी पर दया न करना और न कोमलता से काम करना। बूढ़े, युवा, कुंवारी, बाल बच्चे, स्त्रियां सबको मारकर नष्ट करो, परंतु जिस किसी मनुष्य के माथे पर वह चिन्ह हो उसके निकट न जाना। मेरे पवित्र स्थान ही से आरंभ करो। अतः उन्होंने उन पुरनियों से आरंभ किया जो भवन के सामने थे। फिर उसने उनसे कहा, भवन को अशुद्ध करो और आंगनों को शवों से भर दो, चलो बाहर निकलो। तब वे निकलकर नगर में मारने लगे। जब वे मार रहे थे और मैं अकेला रह गया, तब मैं मुँह के बल गिरा और चिल्लाकर कहा, हाय प्रभु यहोवा, क्या तू अपनी जलजलाहट यरूशलेम पर भड़का कर इसराइल के सब बचे हुओं को भी नष्ट करेगा? तब उसने मुझसे कहा, इसराइल और यहूदा के घरानों का अधर्म अत्यंत ही अधिक है, यहाँ तक कि देश हत्या से और नगर अन्याय से भर गया है, क्योंकि वे कहते हैं यहोवा ने पृथ्वी को त्याग दिया और यहोवा कुछ नहीं देखता। इसलिए उन पर दया न होगी, न मैं कोमलता करूँगा, वरन उनकी चाल उन्हीं के सिर लौटा दूंगा। तब मैंने क्या देखा कि जो पुरुष सन का वस्त्र पहने हुए और कमर में दवात बांधे था, उसने यह कहकर समाचार दिया, जैसे तूने आज्ञा दी मैंने वैसा ही किया है। परमेश्वर के तेज का यरूशलेम के मंदिर से निकल जाना। 10 अध्याय पहले वचन से। इसके बाद मैंने देखा कि करूबों के सिरों के ऊपर जो आकाश मंडल है उसमें नील मणि का सिंहासन सा कुछ दिखाई देता है। तब यहोवा ने उस सन के वस्त्र पहने हुए पुरुष से कहा, घूमने वाले पहियों के बीच करूबों के नीचे जा और अपनी दोनों मुट्ठियों को करूबों के बीच के अंगारों से मारकर नगर पर बिखेर दे। अतः वह मेरे देखते देखते उनके बीच में गया। जब वह पुरुष भीतर गया तब वे करूब भवन के दक्षिण की ओर खड़े थे और बादल भीतर वाले आंगन में भरा हुआ था। तब यहोवा का तेज करूबों के ऊपर से उठकर भवन की डेवढ़ी पर आ गया और बादल भवन में भर गया और वह आंगन यहोवा के तेज के प्रकाश से भर गया। करूबों के पंखों का शब्द बाहरी आंगन तक सुनाई देता था। वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बोलने का सा शब्द था। जब उसने सन के वस्त्र पहने हुए पुरुष को घूमने वाली पहियों के भीतर करूबों के बीच में से आग लेने की आज्ञा दी, तब वह उनके बीच में जाकर एक पहिए के पास खड़ा हुआ। तब करूबों के बीच से एक करूब ने अपना हाथ बढ़ाकर उस आग में से जो करूबों के बीच में थी कुछ उठाकर सन के वस्त्र पहने हुए पुरुष की मुट्ठी में दे दी और वह उसे लेकर बाहर चला गया। करूबों के पंखों के नीचे तो मनुष्य का हाथ सा कुछ दिखाई देता था। तब मैंने देखा कि करूबों के पास 4 पहिए हैं, अर्थात एक एक करूब के पास एक एक पहिए है और पहियों का रूप फिरोजा
का सा है। उनका ऐसा रूप है कि चारों एक से दिखाई देते हैं, जैसे एक पहिए के बीच दूसरा पहिया हो। चलने के समय वे अपनी चारों अलंगों के बल से चलते हैं और चलते समय मुड़ते नहीं, वरन जिधर उनका सिर रहता है वे उधर ही उसके पीछे चलते हैं और चलते समय वे मुड़ते नहीं। पीठ, हाथ और पंखों समेत करूबों का सारा शरीर और जो पहिए उनके हैं वे भी सब के सब चारों ओर आंखों से भरे हुए हैं। मेरे सुनते हुए इन पहियों को चक्कर कहा गया, अर्थात घूमने वाले पहिए। एक एक के चार चार मुख थे। एक मुख तो करूब का सा, दूसरा मनुष्य का सा, तीसरा सिंह का सा और चौथा उकाब पक्षी का सा। करूब भूमि पर से उठ गए। ये वे ही जीवधारी है जो मैंने कबार नदी के पास देखे थे। जब जब वे करूब चलते थे तब तब वे पहिए उनके पास पास चलते थे, और जब जब करूब पृथ्वी पर से उठने के लिए अपने पंख उठाते तब तब पहिए उनके पास से नहीं मुड़ते थे। जब वे खड़े होते तब ये भी खड़े होते थे, और जब वे उठते तब ये भी उनके संग उठते थे, क्योंकि जीवधारियों की आत्मा इनमें रहती थी। यहोवा का तेज भवन की डेवढ़ी पर से उठकर करूबों के ऊपर ठहर गया। तब करूब अपने पंख उठाकर मेरे देखते देखते पृथ्वी पर से उठकर निकल गए, और पहिए भी उनके संग संग गए, और वे सब यहोवा के भवन के पूर्वी फाटक में खड़े हो गए, और इस्राएल के परमेश्वर का तेज उनके ऊपर ठहरा रहा। ये वे ही जीवधारी है जो मैंने कबार नदी के पास इस्राएल के परमेश्वर के नीचे देखे थे, और मैंने जान लिया कि वे भी करूब है। हर एक के चार मुख और चार पंख, और पंखों के नीचे मनुष्यों के से हाथ भी थे। उनके मुखों का रूप वही है जो मैंने कबार नदी के तट पर देखा था। उनके मुख ही क्या, वरन उनकी सारी देह भी वैसी ही थी। वे सीधे अपने अपने सामने ही चलते थे। 2 years बाइबल रीडिंग प्लान, 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। पवित्र आत्मा, हम आपको धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे इस वचन पढ़ने की सेवकाई को आशीषित किया और हमें इन वचनों के ऊपर अपना मन लाने के लिए मदद किया। थैंक यू फादर गॉड। हमें फिट एंड फिक्स कर ईश्वरीय रचना में हमको लेकर आ पवित्र आत्मा। यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। 2 years बाइबल रीडिंग प्लान, 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। जॉन 12 चैप्टर 1 से 11 वर्स, 1 क्रॉनिकल्स 14 चैप्टर। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय का 1 वचन से 11 वचन। पहले इतिहास की पुस्तक 14 अध्याय। हम अकेले में बैठकर व्यक्तिगत समय में इन अध्यायों के वचनों को पढ़ना है। ऐसा करके 2 साल के अंत में हम देखेंगे परमेश्वर के वचन के अनुसार पवित्र आत्मा हमको एक व्यक्ति, पर्सनालिटी बनाकर परमेश्वर के कामों में इस्तेमाल कर पाए, ऐसी अवस्था में लेकर आएगा। और ये होने के लिए ही पवित्र आत्मा हमारे अंदर इस वचनों के पढ़ने के काम को पूरा करके दे रहा है। निश्चित हमने पवित्र आत्मा का लाभ उठाना है। अनुग्रह का, सच्चाई का, आत्मा का हमने लाभ उठाना है। प्रभु यीशु मसीह हम सब के साथ बना रहे। आमीन आमीन आमीन। पवित्र आत्मा हमें फिट एंड फिक्स कर वचनों में ईश्वरीय रचना, डिवाइन ऑर्डरलीनेस में हमको लेकर आ। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन।